students, in our previous two lectures, I've introduced what is training all about. This was the slide that we have done in our previous lecture, right? And that it is a subsystem of HRD and other things. And lastly, the second slide that we have done was this one, right? So here this chart is given where in learning dimensions, participant, content, purpose and duration is given, then training development is given. This thing we have already explained to you in the last lecture, right? Now again, just to repeat it, basically you can say wherever training is taking place, right? I tried to make you understand that the requirement of training for a person at the shop floor level, at the lowest level, people those who are working on machines and all, and if you compare with the management people, those who are executive people, is different because the work nature is different, so the training requirement is also different, right? Because people at the lower level, they are more concerned with the technical knowledge, whereas people higher up, those who are in controlling positions, those who are managing things, or particularly they are managers or junior managers or senior managers or the management of the company, they have a different role to play. So the training requirement for all the category, the basic thing to understand is that there is a training requirement for every kind of employee, be it at the lowest level or at the highest level. Secondly, their requirement is different according to the nature of the work being done by them. Thirdly, the hierarchical level within the organization also determines what kind of training needs to be imparted. किस तरह की training उनको दी जानी है, right? So on one side, people at the lower side, you can say, or the lower side in the sense, in the lower in the hierarchy, people those who are working on machines, supervisors, technicians, technical people, they are more oriented toward training on machines and all, and tools and techniques and technology. Whereas people in the managerial position, they are mostly about managing human beings and general management, right? Because they need to control people, they need to take work out of people. So nature of the work is a determining factor as to what kind of training needs to be imparted. So, however, I should mention over here that wherever there is a training, there is development of the person. But basically here this chart shows that training is essentially for the people, those who are non-managers and technical people, and development oriented training, you can say, is for the management and executive people. That's why it is written technical, mechanical, operational, theoretical, conceptual skills. Yani ki people, human behavior oriented things, because they need to control people. Specific job related skills, general knowledge. Yani ki they need to have knowledge of everything. Managerial people, right? So duration of training is short term, whereas these are long term, because in order to control people, managerial people, they need to have these skills on a long term basis, right? एक नई मशीन आई, उस नई मशीन को सीखने में, उसको ऑपरेट करने में जो समय लगा, वो शॉर्ट टर्म का है. हो सकता है उसके बाद दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाए तो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग. बट चूंकि ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल करने से रिलेटेड होती है, जो डेवलपमेंट के उसमें आ रही है, which is more related to people in the executive and the managerial level or category of people. So there is a long term perspective कि लंबे समय तक उनको इसी चीज में डील करना है, because then always need to control people. So there is more development oriented and training is more towards technical learning, technical skills. This is what is said. But here I would again mention that if there is a training of any kind, development automatically taking place. This is not a straight jacketed kind of thing, but just for your explanation that people at the lowest level are more technical oriented, and people in the managerial and executive cadre, they are more theoretical, conceptual and human behaviorally oriented trainings are given as to how to control people, how to manage people, right? So this is the difference. Now coming to the aims and objectives of the training, first is to impart basic knowledge, skill and ability for a particular job. KSAs बोलते हैं, ये ability बीच में आ गया है. KSAs को अच्छी तरह याद रख सकते हैं आप. Knowledge, skill and ability. You see, knowledge is more theoretical oriented. किसी भी काम को करने के लिए हमें theoretical knowledge चाहिए होती है, ठीक है. Ability आपकी एक inner potential को दर्शाती है.
आपकी एक इनर पोटेंशियल एबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल यू हैव एबिलिटी टू, यू कैन से एबिलिटी फॉर गुड राइटिंग। जैसे हर आदमी अच्छा राइटर नहीं बन सकता, बट कईयों में स्किलफुल, मतलब दे हैव द एबिलिटी टू राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्रिकेट का एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस टेक, ठीक है, कुछ लोग बैटिंग अच्छी करते हैं, कुछ लोग बॉलिंग करते हैं, तो ये उनकी एबिलिटी ऑलरेडी जो डेवलप होती है वो कहीं ना कहीं उसके पोटेंशियल से, उनके पोटेंशियल से भी रिलेटेड है। अरे भाई उसकी एबिलिटी बड़ी अच्छी है, बिकॉज ही हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टुवर्ड्स एक्वायरिंग सर्टेन एबिलिटी, इसलिए वो एबिलिटी है। नॉलेज थियोरिटिकल नॉलेज है आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल कार चलाने के देता हूं। गाड़ी चलाने का थियोरिटिकल नॉलेज आपको दे दिया कि भाई ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, आप समझ गए, वो नॉलेज आ गई आपको कि ये चीजें स्टीयरिंग से कंट्रोल होता है, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। एबिलिटी, अब जैसे कुछ लोग अच्छी गाड़ी चलाते हैं, कुछ लोग नहीं चला पाते, चलाना ये भी जानता है, चलाना दूसरा भी जानता है, बट एबिलिटी में फर्क है, ठीक है। स्किल कि भाई इतनी स्पीड में अच्छी तरह से गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, अच्छे मैन्यूवर्स कर पा रहे हैं, वो आपका स्किल है, ठीक है। सामने वाले ने अचानक से गाड़ी रोक दी, आपने इमीडिएटली ब्रेक ले लिए और उससे टकराने से बढ़ा, ये आपका स्किल है ड्राइविंग का। तो नॉलेज थ्योरेटिकल है, एबिलिटी एक नेचुरल टेंडेंसी आप कह सकते हैं टुवर्ड्स डूइंग समथिंग। स्किल जो है जो आप प्रैक्टिस से एक्वायर करते हैं, एक्सपीरियंस से एक्वायर करते हैं। एक आदमी जिसने 1 साल गाड़ी चलाई है और जिसने 10 साल चलाई है, दोनों में फर्क क्यों है? क्योंकि ही हैज एनकाउंटर्ड मेनी ओकेजन्स, मेनी डिफिकल्ट सिचुएशंस, ठीक है। सिमिलरली ऑल दीज केसेस दे कैन बी अप्लाइड टू वर्क कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो, वेयर अ पर्सन्स नॉलेज, एबिलिटी एंड स्किल्स आर पुट टू टेस्ट। एंड here comes the importance of training, that training gives you basic knowledge about how to acquire a knowledge of a particular doing things, your ability and skill for a particular job. So basically इन 3 चीजों को बढ़ाती है आपको ट्रेनिंग, ठीक है, नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी को बढ़ाती है। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू एब्जॉर्ब चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट एंड रिड्यूसेस रेजिस्टेंस टू चेंज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू एब्जॉर्ब चेंज। नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो हाउ यू आर गोइंग टू एब्जॉर्ब द चेंज? बाय इक्विपिंग योरसेल्फ विद द अपकमिंग ट्रेंड्स एंड अपकमिंग टेक्नोलॉजी, एडॉप्ट दैट, ठीक है। तो एब्जॉर्ब तभी चेंज होगा, वरना आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। आप चेंजेस को एब्जॉर्ब करने के लिए खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे तो इस जो रेस चल रही है, कॉर्पोरेट की रेस है, इसमें आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पिछड़ जाएगी। आपके लोग अगर उस चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाए तेजी से तो आप पीछे रह जाओगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पीछे रह जाएगी। एंड रिड्यूस रेजिस्टेंस टू चेंज, ये इसलिए है कि देखिए लोग रेजिस्टेंस टू चेंज हर नई चीज का करते हैं, बट अगर उनको अच्छी तरह से वो ट्रेनिंग दी जाए और चीजें समझा दी जाए तो वो उसका रेजिस्टेंस छोड़ देंगे और चेंजेस को अडॉप्ट कर लेंगे। तो ट्रेनिंग, चूंकि आपकी नॉलेज, स्किल, एबिलिटी इट रियली एनहेंसेस, so naturally it will definitely reduce resistance to change, because people will be more inclined to adopt to the changes being brought about in the organization. Then training increases productivity. Of course, if a person is more skillful, his knowledge, ability, skills are enhanced, naturally it will have a direct effect or bearing on the productivity of the person, right? प्रोडक्टिविटी जनरली बच्चों हम कह सकते हैं एक तरह से डायरेक्टली आपके आउटपुट से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग आपकी प्रोडक्टिविटी या आपके आउटपुट को बढ़ाएगी। इट हेल्प्स टू मीट फ्यूचर मैन पावर नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स भाई आज हमारे पास इतने लोग, 100 लोग काम कर रहे हैं, इनमें से बहुत लोग आने वाले फ्यूचर पोजीशंस के लिए तैयार किए जा रहे हैं। उनमें वो स्किल, नॉलेज, एबिलिटी है तो वो फ्यूचर की पोजीशंस जो खाली होने वाली है उनको मैनेज कर पाएंगे। सो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग आपको तैयार करती है अपने फ्यूचर रोल्स के लिए, और जिससे कि हमारी फ्यूचर मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सके। इट एम्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ टास्क। ऑफ कोर्स अ मोर स्किलफुल पर्सन, अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड पर्सन, he will give a good work output and his quality of work or the quality of task being given to him will be of good quality, ठीक है। he will be more skillful, naturally it will affect the quality of the task being given to him. Then to improve health and safety and to reduce supervision, wastage, accident and labor turnover rate,
यहां मैं कई चीजें आपको समझाता हूं। देखिए, इंप्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी कैसे है। नॉलेज, ट्राई टू परसीव अ फैक्ट्री वेयर लोग बहुत सारी मशीनों में काम कर रहे हैं, ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी, क्योंकि आप मोर स्किलफुल हैं, आप ज्यादा अवेयर्ड हैं, तो आप सेफ्टी मेजर्स को लेते हुए अपनी हेल्थ को गार्ड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी खतरे से बच सकते हैं, बिकॉज यू आर मोर स्किलफुल इन हैंडलिंग थिंग्स, इन हैंडलिंग मशीन्स, ठीक है। टू रिड्यूस सुपरविजन, क्योंकि आप खुद से ट्रेंड हैं, आपको बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता या डायरेक्शंस की आवश्यकता नहीं है। यू कैन मैनेज योर वर्क योर सेल्फ ओनली। Then wastage, of course, if you are skillful, you are able and having knowledge, you will reduce the wastage because you will utilize the production factors of production more, you can say more suitably, right? Accidents कम होंगे, क्यों? क्योंकि you are skillful, you can handle things better, naturally accidents भी कम होंगे। लेबर टर्नओवर रेट क्या होता है बच्चों, कि बहुत कितने लोग आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में और कितने लोग जा रहे हैं, इसको लेबर टर्नओवर रेट बोलते हैं। सो टेक्निकल पीपल, लोअर पीपल, वहां पे थोड़ा सा ज्यादा कई बार हो जाता है अगर लोग अनट्रेंड होते हैं, क्योंकि दे हैव टू अडॉप्ट टू द चेंजिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे लेबर टर्नओवर रेट भी कम हो जाएगा अगर बेटर ट्रेन पर्सन होंगे, तो लोगों का आना जाना जो रेट है, मैंने पीपल लिविंग दी ऑर्गेनाइजेशन, पीपल ज्वाइनिंग दी ऑर्गेनाइजेशन, इसको लेबर टर्नओवर रेट बोलते हैं, ये कम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पीपल आर ट्रेन्ड, दे नो देयर जॉब, दे गेट प्रमोशन, दे गेट गुड सैलरी, सो दे आर मोर स्टेबलाइज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। वो ज्यादा छोड़ के जाने की कोशिश, नौकरी छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। भाई, आदमी नौकरी कब छोड़ता है? पैसे कम मिलते हैं, या आप में एबिलिटी नहीं है ज्यादा पैसे कमाने की, आप किसी दूसरी जगह अपनी सहूलियत के हिसाब से जॉब देखते हो, तो ये चीज कम हो जाती है। क्योंकि यू आर अ बेटर ट्रेन पर्सन, यू गेट बेटर वेजेस, एज अ रिजल्ट टेंडेंसी टू चेंज, क्विकली चेंज ओवर जॉब्स ऑल्सो गेट्स रिड्यूस। तो ये 6 पॉइंट तक हमने आज कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर।